Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter, that is chapter number 8 of your Beehive, Reach for the Top. And we have also covered part 1, that is Santosh Yadav. So now today we have to cover the second story, that is part 2nd. So let's come to second part. Come to page number 101 of your book. Sorry, it's page number 104. Now the part 2nd which we are going to read is about Maria Sharapova. So, who was Maria Sharapova? A Russian girl. See that before you read. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. उन्होंने विमेंस टेनिस कब उन्होंने किया था ये कंपटीशन या ये गेम? जब वो ऑलमोस्ट 17 years की थी and she barely reached to the age of 18th year. As you read above her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. So that is the activity which we will perform afterwards because we haven't read about her. So we just have to go towards the story because these are the writing parts which we will do afterwards. Let's come to the first paragraph of Maria Sharapova. See this. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. अब यहाँ पे समथिंग डिसआर्मिंग मीन्स कुछ ऐसा जो आपको मरिया शरापोवा से कनेक्ट करेगा, एक फ्रेंडली रिलेशन बताएगा. कुछ ऐसा था जो कि उनकी स्माइल में कुछ और था, जनरल स्माइल से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. और उनका जो अटायर था वो भी ग्लैमरस था. मीन्स व्हाट? ग्लैमरस मीन्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर अट्रैक्टिव. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे. और ये सब कब हुआ था? मंडे को, ऑन 22nd of August 2005. और ये सब क्यों था? उनके अटायर पर और उनके फेस पर एक अलग सा ग्लैमर या ग्लो क्यों था? और हर किसी को वो रिलेट क्यों कर रही थी? वाई शी वॉज हैप्पी? जस्ट बिकॉज ऑफ द डे 22nd August 2005, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन जो होती है वो मिली थी इन प्लेइंग tennis, and that also women's tennis. So she was the number 1 girl or number 1 lady of the world in women's tennis. All this happened in almost no time. Definitely आप जब कोई गेम खेलते हैं एंड डायरेक्टली आपको बोल दिया जाए सारे गेम्स के राउंड क्लियर होने के बाद दैट यू आर द अल्टीमेट विनर, सो दैट विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर यू ऑल. So that was same with Maria Sharapova. She was just playing world tennis of women and finally she reached to the finale and she won it. तो वो मोमेंट उनके लिए कैसा होगा? द मोस्ट हैप्पी मोमेंट एवर. और उस मोमेंट को, उस अनाउंसमेंट को कुछ टाइम नहीं लगता है और वो आपका ग्लैमर या आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देता है. यू बिकम फेमस. सो सेम वॉज द कंडीशन ऑफ मारिया शरापोवा. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Now what is poised? Poised होता है जो शांत भी हो और कॉन्फिडेंट भी, मीन्स calm and confident. So poised beyond her years, वो अपने ईयर में काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, बट उस टाइम पर भी वो ऐसी थी कि वो काफ़ी मेच्योर्ड थी, काम डाउन थी, एंड जो भी काम वो करती थी दैट वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. And she was a Siberian girl. Who was she? A Siberian girl. That's why she was a teenager. Because she hasn't reached the age of 18 years means she was a teenager. और उनको सिर्फ 4 years लगे to become a professional. And professional of what? Tennis. To reach the pinnacle. Pinnacle क्या होता है? The most highest point जो आप achieve करेंगे. It's the highest point ever. तो पिनाकल होता है टू रीच एट द टॉप. इट वॉज द हाइएस्ट पॉइंट फॉर हर जो उन्होंने अचीव किया था जस्ट 4 years ऑफ प्रैक्टिस में.
and that also in the age of teenager. So now let's come to page number 105. See this. She is holding the winning trophy. Maria Sharapova won the women's singles at Wimbledon in 2004. Now come to page number 105, the second paragraph. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Now what is rapid ascent? Ascent means होता है एक rise, एक उछाल. In a fiercely competitive world, fiercely means जल्दी से, भागता हुआ, violent तरीके से. तो 9 years before जब ये मैच हुआ था तब ये वर्ल्ड कैसा था? हर तरफ से कंपटीशन. जहाँ पर भी आप जिस भी एक लेवल पर देखेंगे, वेदर मैन और वीमेन, दे वर जस्ट फाइटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल्स. सो इन दिस रैपिड असेंट मीन्स जल्दी से राइज करने वाली एक कंट्री या फिर एक वर्ल्ड, उसमें सबसे ज़्यादा राइज क्या हो रहा था इन अ वायलेंट फॉर्म? दैट वाज कॉम्पिटिटिव मैनर. और ये सब चालू हो गया था ऑलमोस्ट 9 years बिफोर 2005. और वहाँ पर काफ़ी चिल्ड्रन वो किस चीज़ को सेक्रीफाइस करते थे? अपने प्रिपेयर्ड टैलेंट को. मीन्स का हर कोई कंपटीशन में पार्ट लेता है, बट ज़रूरी नहीं है सब जने जीत पाएँ. एंड अगर उनका वो दिन चला गया फॉर द कंपटीशन, देन उनको अगेन पार्टिसिपेट करना पड़ेगा टू रीच टू द लेवल फॉर एंड्योरेंस. तो उनके पास इतना ज़्यादा एंड्योरिंग पावर होना चाहिए कि अगर वो पहली बार में नहीं सिलेक्ट हो पाए, सो दे हैव टू कम अगेन फॉर अनदर टाइम. तो उनको अपनी प्रिपरेशन के लिए, आगे कुछ और सीखने के लिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ती थी. बट सारे चिल्ड्रन एट दैट टाइम किस पर फोकस कर रहे थे? ऑन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. नाउ सी दिस. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. That trip to Florida with her father, Yuri, launched her on the path of success and stardom. अब ये मारिया वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी. मीन्स उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था. मीन्स वॉट, शी वॉज जस्ट 9 years old, 9 years प्लस. एंड एट दैट टाइम उनके फादर ने उनको क्या बोला? दैट शी हैज़ टू पैक हर बैग्स ऑफ जस्ट फॉर ट्रेनिंग. और वो कहाँ गई थी ट्रेनिंग के लिए? इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और उनकी वो फ्लोरिडा ट्रिप किसके साथ थी? उनके फादर के साथ. और जस्ट बिकॉज उनके फादर ने उस टाइम पर उनके कॉम्पिटिटिव करियर पर ध्यान दिया, दैट्स वाई शी गॉट सक्सेस एज वेल एज स्टारडम. वो फेमस भी हुई और कॉम्पिटिटिव लेवल पर सक्सेसफुल भी हुई, जस्ट बिकॉज उनका फुल एंड्योरेंस, उनका फुल पावर, उनकी फुल प्रिपरेशन किसके लिए थी? टू प्ले द कॉम्पिटिटिव, एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव गेम्स. एंड उसमें से उन्होंने सेलेक्ट करा था टेनिस फॉर हर सेल्फ. एंड उनको सपोर्ट करने वाला या उनको आगे बढ़ाने वाला कौन था? हर फादर. ताकि वो अर्ली एज में सीखें और काफ़ी टाइम तक अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ टू रीच एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव लेवल एंड बीन सेलेक्टेड. But it also required a heart-wrenching 2 year separation from her mother Yelena. लेकिन कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन के पीछे या उनको स्टारडम मिला, वो फेमस हुई, उसके पीछे उनका सेक्रीफाइस भी था. और वो सेक्रीफाइस काफ़ी ज़्यादा दुखी कर देने वाला था. मीन्स इट वॉज हार्ट रेंचिंग, जो आपको काफ़ी डीपली सैड कर दे. और वो सैड क्यों थी? क्योंकि वो 2 years तक सेपरेट रही फ्रॉम हर मदर एट सच एंड स्मॉल एज. तो इतनी छोटी एज में अपनी मदर से दूर होना, डेफिनेटली फॉर अ गर्ल दैट वाज वेरी टफ. द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस. और ये मारिया, उनको कुछ टाइम और साइबेरिया में रुकना पड़ा क्योंकि उनके वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शंस से. मीन्स उनको परमिशन नहीं थी टू एंटर एनी अदर कंट्री. इसलिए जब वो अपना सब कुछ सीख कर वो फ्री हो गई, वो कॉम्पिटिटिव लेवल तक प्रिपेयर्ड हो गई, तो भी वो अपने कंट्री में नहीं जा पाई जस्ट बिकॉज उनके वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थे. उनको कुछ टाइम और रुकना पड़ा उसी शहर में जहाँ से उनके वीज़ा को क्लियर होना था. द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ,
दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। उस टाइम पर द 9 year old गर्ल, आपने पहले भी देखा था, वो अपना 10th बर्थडे कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मीन्स शी वॉज 9 years और 9 year प्लस। सो शी वॉज सो मेच्योर्ड एट दैट एज कि वो ये सीख चुकी थी कि अगर आपको लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्राइस चुकानी पड़ती है, कोई कीमत होती है। और अगर वो अपना टेनिस में एक्सीलेंस हासिल कर रही थी तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, शी लॉस्ट हर मदर फॉर 2 years। और वो बिना उनसे मिले, बिना अपने पेरेंट्स के कंफर्ट जोन में रहे, वो बाहर गई फॉर ट्रेनिंग। सो दैट वॉज द हाइएस्ट प्राइस जो उन्होंने उस वक्त पे करी थी, टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड लर्न टेनिस बाय हार्ट। कमिंग टू थर्ड पैराग्राफ। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. अब उन्होंने खुद से बोला कि अब मुझे याद आता है कि मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस करती थी, क्योंकि मेरे पास मेरा एक भी फैमिली मेम्बर नहीं था। और मैं सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से, टेरिबली, किसको मिस करती थी, टू माई मदर। और मेरे फादर भी इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे जस्ट बिकॉज वो मेरी टेनिस कंपटीशन के लिए कोच को पे कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब वो खुद कमाएंगे, खुद हार्डवर्क करेंगे, तभी वो कोच को ट्रेनिंग फ़ी दे पाएंगे। और इसीलिए वो अपने फादर को भी नहीं देख पाती थी, ना उनके फादर उनको। सो बोथ द पेरेंट्स वर आउट ऑफ रीच फ्रॉम देयर चाइल्ड। तो वो भी सबसे दूर रही एट सच a small age. Coming to fourth paragraph. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come in. उन्होंने ये बोला कि वो इतनी ज़्यादा छोटी थी और सबसे काफ़ी ज़्यादा यंग थी, जो बाकी प्लेयर्स वहाँ पर आते थे, तो हर बार वो अर्ली टू बेड जाती थी, दैट इज़ 8 p.m. शार्प। और रेस्ट ऑफ द टेनिस प्यूपल्स मीन्स स्टूडेंट्स, वो वहाँ पर लेट आते थे। वी विल सी ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 106। वो वहाँ पर कब आते थे, एट 11 p.m. एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। मीन्स उस टाइम पर भी उनको लोग बुली करते थे जस्ट बिकॉज शी वॉज टू स्मॉल। वो 8 p.m. पर अगर सोती थी, देन शी हैज़ टू डिस्टर्ब हर स्लीप जस्ट बिकॉज बाकी सारे जो यंगस्टर्स थे वो उनको प्रेशराइज करते थे टू क्लीन अप द रूम एट 11 p.m. और तब जाकर ही वो सारे लोग वहाँ पर सोते थे। सो दैट वॉज वेरी डिप्रेसिंग फॉर हर, कि उनको उस टाइम पर भी बुली किया जाता था जस्ट बीइंग टू स्मॉल। कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 5. Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. अब ये चीज़ें थी, कुछ टाइम तक उनको डेफिनेटली बुरा लगता होगा, बट हर बार एक डिप्रेस फॉर्म में रहने से अच्छा उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को डिटरमाइंड बनाऊं कि ये काम मेरा ही है तो मुझे ही करना है, इससे मैं मेंटली टफ रहूँगी और डिप्रेस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। और यही उनका काम था जो उन्होंने उस वक्त अकेले रहकर सीखा था, टू गेट मैच्योर्ड वेरी वेल। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. उन्होंने क्या बोला, मैं अपनी केयर करना खुद से सीख गई थी और मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि मैं इस जगह से क्विट नहीं करूँगी, मीन्स मैं बैक ऑफ नहीं करूँगी और मैं उसी चीज़ को हासिल करूँगी जिसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या जो मुझे चाहिए। एंड उन्होंने ये भी बोला, जो आपके पास नहीं होता है, When you come from nothing means आपकी कोई पोजीशन नहीं, आपको कोई नहीं जानता, no one knows you, you are just an ordinary person। और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है, पोजीशन या फेम ऑलरेडी, जिसको आपने अभी तक नहीं कमाया हो, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है टू सर्वाइव एट अ प्लेस जहाँ पे हर किसी के पास नेम एंड फेम होगा, अदरवाइज मनी होगी। और आपको उन सबको देखकर हर बार एक हंगर फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिसके लिए आप हंग्री हो, जो चीज़ें आप सीख रहे हो, वो चीज़ आप तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आप उसमें अपना नाम नहीं कमा लेते। एंड दैट वॉज हर गोल इन लाइफ।
I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. उनके पास उससे ज़्यादा भी काफ़ी ह्यूमिलिएशन आए, लोगों ने उनको बीच बीच में परेशान किया अलग अलग तरीक़ों से, काफ़ी लोगों ने इंसल्ट करी, बट उन्होंने अपने आप के ऊपर कभी भी उस इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन को हावी नहीं होने दिया. शी जस्ट लेट देम बी. एंड फाइनली क्या हुआ, वो अपने ही एक स्टडी फॉर्म में खड़ी रही, एक जगह फर्म, स्ट्रिक्ट, कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी. एंड दैट वाज हर फाइनल डिटर्मिनेशन, जिसने उनकी हेल्प करी टू अचीव हर ड्रीम, टू परस्यू हर ड्रीम. कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 6. दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. इसीलिए आज भी जब उन्होंने विमेंस चैम्पियनशिप को हासिल किया था टेनिस में, वो आज भी उनमें है. वो टफनेस, वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आज भी उनके पास है. शी नेवर चेंज्ड. It was a key to her begging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. सिर्फ उनकी टफनेस के कारण ही वो आगे ग्रोथ करती गई, कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. एंड वही उनके लिए एक पर्टिकुलर की थी, एक परफेक्ट की, जो उनको हर बार आगे बढ़ाती थी, उनकी हेल्प करती थी. एंड उसी के कारण उन्होंने 2004 विंबलडन ट्रॉफी जस्ट फॉर हैविंग वन पोजीशन उसको हासिल किया था. एंड व्हाट वाज दैट फर्स्ट पोजीशन? द विमेंस सिंगल टेनिस गेम. एंड इसी के अकॉर्डिंग उनका एक मेटेओरिक राइज हुआ, मीन्स एक ग्लैमरस, एक चमकदार राइज हुआ, जिसके कारण वो आज तक दुनिया में जानी जाती हैं. और एक ही बार में उनको उस ईयर में काफ़ी बड़ी पहचान मिली. एंड शी क्रिएटेड हर ओन स्पॉट. वो अपने फील्ड के कारण, अपने गेम के कारण उस स्पॉट में जानी गई. कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 7. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. See the paragraph clearly. अब इसमें क्या बोला गया है? See this. उनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा टफ थी. उन्हें कहाँ खेलना पड़ा? ऑन द फ्रोजन प्लेन्स, बर्फ से जमे हुए प्लेन्स पर इन साइबेरिया, फॉर द समिट ऑफ विमेंस टेनिस. Everyone means whether youngsters or anyone who has came for just joining the match. वो कैसे थे? वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे और काफ़ी बार वो खुश भी हुए इनके मूव्स को देखकर. बट शी वॉज द वन जिनके पास सेंटिमेंट्स के लिए या भावुकता के लिए कोई और रूम नहीं था. शी हैज़ नेवर गिवन स्पेस टू एनी ऑफ द क्रायल. वो कभी भी रोती नहीं थी या परेशानियों को देखकर हारती नहीं थी. शी वॉज टू स्ट्रॉन्ग. एंड वो अपने लिए जो गेम खेल रही थी उसमें वो काफ़ी ज़्यादा फोकस थी. तो उनको कभी भी दुख नहीं हुआ या कभी भी वो एक सेकंड के लिए भी भावुक नहीं हुई. बट रेस्ट ऑफ द पीपल दे वर टू हैप्पी जब उनको ये अवार्ड मिला. एंड डेफिनेटली शी वॉज ऑल्सो हैप्पी आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी, बट शी हैज़ नॉट क्राइड. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it. जब उनसे as interview सारे questions पूछे गए about her success, so she was very clear to give the answer. वो कहीं पर भी अटकी नहीं, उनको पता था उनको कैसे और कौन से आंसर्स देने हैं. एंड उन्होंने सब कुछ बताया अपने बारे में. और उन्होंने ये बोला कि सेक्रीफाइसेस वैल्यूएबल होते हैं. मीन्स उन्होंने अगर फैमिली को सेक्रीफाइस किया फॉर सम रीज़न, तो आज वो सेक्रीफाइस के कारण कुछ हासिल कर पाई. द पिनाकल, द हाईएस्ट पॉइंट जो उनको हासिल करना था. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. उन्होंने क्या बोला? शी वॉज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. उनके नेचर में ही था टू कम्पीट. आई वर्क हार्ड एंड एट वॉट आई डू. इट्स माई जॉब. दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस. उनका क्या मंत्र था सक्सेस का?
कि सबसे पहले तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर जा रहे हैं तो आपको खुद से एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, एक डिटर्मिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट उस डिटर्मिनेशन को फॉलो अप करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और वही हार्ड वर्क आपका एक परफेक्ट जॉब है जिससे आप पीछे नहीं हट सकते। एंड दैट इज़ द मंत्र फॉर सक्सेस एट कॉम्पिटिटिव लेवल्स। Coming to paragraph number 8, though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. अब मारिया शरापोवा वो कहाँ गई थी सब कुछ सीखने के लिए? इन USA मीन्स अमेरिका। एंड विद इन 2 years वो इतनी ज़्यादा फ्लुएंट हो गई थी कि वो अमेरिकन लैंग्वेज क्लियरली बोल सकती थी, बट तो भी उनको रशियन लैंग्वेज भी पूरी तरीके से आती थी और उसका कल्चर भी। तो उन्होंने प्राउडली रशियन परेड करी टू शो द नेशनैलिटी टूवर्ड्स रशिया बिकॉज शी वॉज अ नेटिव ऑफ रशिया। Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I'll play the Olympics for Russia if they want me. उन्होंने साफ बोल दिया आफ्टर डूइंग रशियन परेड वाइल गेटिंग द ट्रॉफी। उन्होंने क्या बोला कि विदाउट एनी डाउट मैं कौन हूँ? मैं एक रशियन हूँ। ये एक ट्रू थिंग है, एक सच्ची बात है कि यूएस ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, क्योंकि वहीं आकर मैंने टेनिस सीखा है एंड मैं आज जो भी हासिल कर चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग इन यूएस। बट हुम आई एम अ रशियन। उनके पास रशिया की ही सिटीजनशिप थी, उनकी बर्थ प्लेस, उनकी बॉर्न प्लेस क्या थी? रशिया, और इसीलिए उनका ब्लड टोटली रशियन है। और कभी भी उन्हें चांस मिला टू प्ले फॉर रशिया तो वो डेफिनेटली ओलंपिक्स में बाय द साइड ऑफ रशिया खेलेंगी, अगर रशियन गवर्नमेंट की उनको परमिशन हुई तो। इफ़ दे वांट हर टू प्ले शी विल डेफिनेटली प्ले फॉर हर कंट्री। कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 9th, like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with a love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. अब यहाँ पर जैसे जनरली यंगस्टर्स की कुछ हॉबीज़ होती हैं, इसी अकॉर्डिंग मारिया शेरापोवा बीइंग द टेनिस प्लेयर उनकी भी कुछ ऐसी जनरल हॉबीज़ थी जो कि उस टाइम पर यंगस्टर्स की होती हैं। मीन्स शी लव टीनेज सेंसेशंस। काफ़ी सारे टीनेज के मूड स्विंग्स होते हैं, काफ़ी सेंसेशंस होते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट्स होते हैं। सो शी लव्ड ईच एंड एवरीथिंग। उनको फैशन भी पसंद था, उनको सिंगिंग भी पसंद थी और डांसिंग भी। वो उनकी फेमस हॉबीज़ थी जो वो फ्री टाइम पर अपने लिए करती थी। शी ऑल्सो लव्स रीडिंग नॉवेल्स। उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ द ऑथर आर्थर कॉनन डॉयल। और वो सबसे ज़्यादा फॉन्ड थी वियरिंग इवनिंग गाउन्स। शायद जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी गाउन्स एंड ऑल ना पहने, पार्टी वेयर अटायर, बट शी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। उनको पसंद था वेयरिंग इवनिंग गाउन्स। हो सकता है कि ये सब सुनने में काफ़ी ऑड लगे क्योंकि अब तो वो टेनिस चैम्पियनशिप जीत चुकी थी, बट तो भी ये एक ट्रू फैक्ट था दैट शी लव्ड इवनिंग गाउन्स एंड शी ऑल्सो लव पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। उनके पैनकेक्स कैसे होने चाहिए? द स्प्रेड ऑफ चॉकलेट के साथ, और साथ में उनको हर बार उनके साथ क्या चाहिए था? द ऑरेंज ड्रिंक्स दैट वर फिजी। व्हाट इज फिजी नाउ? मीन्स हैविंग दैट गैसियस पार्टिकल। कमिंग टू द 10th paragraph, Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. What is pigeonholed? फर्स्ट मीन्स कभी भी उनको किसी एक कैटेगरी में या किसी एक चीज़ पर क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. उनका कौन सा ऐसा टैलेंट था जो उनको दुनिया के सामने लाया? सबसे पहला टैलेंट था उनका स्ट्रॉन्ग या फिर अनवेवरिंग, बिना हिला हुआ डिज़ायर कि जो भी मैंने सोचा है वो मैं हासिल करके रहूँगी। दैट वॉज हर ड्रीम
एज वेल एज हर कॉम्पिटिटिव डिज़ायर। और दूसरी चीज़ क्या थी? हर बार सक्सीड होने की उनकी इच्छा कि मुझे सक्सेस हासिल ही करना है, मुझे सक्सेस चाहिए। एंड द लास्ट थिंग वॉज रेडीनेस टू सेक्रीफाइस। अगर उसके लिए उनको कुछ भी छोड़ना पड़ा तो डेफिनेटली छोड़ेंगी, जब तक कि जो उन्होंने सोचा है उस चीज़ को हासिल ना कर लें, फिर चाहे सेक्रीफाइस जितना भी बड़ा क्यों ना हो। एंड इन्हीं सारी कंडीशंस पर उनको एक पोजीशन मिली जो कि उनके लिए एक पिनेकल था, मीन्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फ्यू वुड ग्रज हर। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, द रिचेस शी इज़ नाउ रीपिंग। काफ़ी लोग वो उससे जलते होंगे, ईर्ष्या करते होंगे, मीन्स दे मस्ट हैव ग्रजेस ऑन हर फॉर द रिचेस शी इज़ नाउ रीपिंग, क्योंकि जितना उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया अब उनको उतनी ज़्यादा ही खुशियाँ मिली। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फॉर टेनिस। और उनको अब यही बोलना है कि एक बार टेनिस खेलने से उनको वही मॉनेटरी गेन्स वापस मिले, मीन्स उनको मनी वापस मिली विथ फेम, शी बिकम फेमस। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। हर किसी को लगता है कि वो लाइफ में बड़ा बने, और बड़ा वो क्यों बनना चाहता है? ताकि वो सक्सेसफुल भी हो, उनका नेम और फेम भी हो, और उनके पास मनी भी हो। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में क्या होता है? टू अर्न मोर मनी। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या बोला? उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन मनी तो था ही, बट टेनिस एक बिज़नेस के साथ एक स्पोर्ट भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी क्या है कि वो उसी में नंबर 1 बनी है इस वर्ल्ड में। तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस उस गेम की है, वो रिस्पेक्ट करती हैं उस गेम की जिसने उनको नंबर 1 बनाया। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और वही एक ड्रीम था कि वो जिस गेम को सीख रही हैं उसी में वो एक लेवल हासिल करें, और इसीलिए वो लाइफ के साथ चलती गई आगे, एंड शी फाइनली गॉट सक्सेस। So this was the story of Maria Sharapova. I hope you have understood it and you have liked it. So till then, thank you class and have a nice day.